Good evening, everyone. Good evening, ma'am. All right. Is it everybody or is not here yet? I mean, I feel some of you are not here. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much for cooperating. Okay. So I was saying that last class we had talked about the process of petroleum forming. How is it being formed, and what are the various components that need to be accumulated in a particular place or in a certain rock. That when there is ample amount of pressure and temperature, the petroleum can be formed. Okay, and along with petroleum there are several other components such as the natural gas which is formed. ठीक है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है. So now you know what is a source rock, you know what is a shale. ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है. Then what is the rock in which the petroleum is formed? Kind of rock is it? Ma'am, sedimentary rock. That's right, it's the sedimentary rock. तो ये चीज क्लियर है. अब आज हम करेंगे द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट दीज कंपोनेंट्स ऑफ द. ठीक है, अब हमें पता है कि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी या फिर जो क्रूड में मिलता है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर से हम बहुत सारे को फिर सेपरेट करते हैं. पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, देयर इज नाफ्था, देयर इज नेचुरल गैस. तो ये सारी जो चीजें हैं हम इन्हें किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, what we will be doing in today's class, right? Ma'am, we were late So because this, ma'am we had break.
हाँ बोलो पावनी. Ma'am, we were late because we had break, ma'am. कोई बात नहीं, it's okay. Right, so look at this one. This is oil shale rock. ठीक है, by the looks of it you can tell me कि इसके अंदर कुछ कार्बन डिपॉजिट है. Why am I saying कि आप इसको देख के बता सकते हो? क्योंकि मैम ये कोल लग रहा है. हाँ बिल्कुल, because you can see the black layer in between, you know, the rock. So that tells you that there are carbon depositions in this. Okay, so this one is a shale rock. And ये जो है ये हमें shale rock से मिलता है. Right? So this is the gas reservoir. बताता ना कि oil के साथ साथ gas भी होती है, natural gas. तो natural extract there is a separate unit also. Okay. Then I will come back to this one. 1 second. Right. What is the technique or method that is used to separate the various components of crude oil? This fractional distillation. Ma'am, fractional distillation. Fractional distillation. Okay, that's right. Fractional distillation. I just joined the class. What did you do till now? Kush, today we are talking about the refining methods, which are to separate the various components of petroleum. Okay, so this thing you Okay, need to ma'am. note down, right? जल्दी से इस चीज को note down करो. I'm noted. Noted. Okay, wait. Just a second. Ma'am, done. All right. Now, can you people tell me what is fractional distillation? या फिर what is distillation? ठीक है, आपने बोला distillation. तो ये जो process है distillation, इसमें होता क्या है? Actually happening. मैम इसमें फिल्टर होता है. अच्छा ठीक है, और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के उनको सेपरेट किया जाता है और उनसे जो यूजफुल चीजें निकलती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वो सब. ठीक है. Okay. Anybody else? Distillation means What the separating of components from a liquid substance. right? See, so distillation is a process which we use जब हमारे पास एक हमें उस लिक्विड में से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. ठीक है, अगर मैं आपको पानी के अंदर चॉक का सैंड डिसॉल्व करके दे दूं तो आप उसे कैसे सेपरेट कर सकते हो सैंड और बाय यूजिंग अ सिंपल सीव, यानी कि एक छाननी लोगे और नीचे पिनर रखोगे, है ना, और उसमें से जब आप उस सोल्यूशन को पास करोगे तो व्हाट विल यू गेट. अगर यहाँ पे देयर इज अ, जिसमें मैंने फिल्टर पेपर लगा दिया, ओके, ये वाला ज्यादा बेटर है. फिल्टर पेपर लगा दिया इस फनल के अंदर और इसमें से मैंने ये सोल्यूशन पास, हाँ मुझे वाटर मिल जाएगा और इसके अंदर मुझे सारी सैंड मिल जाएगी. दिस इज अ सिंपल टेक्निक विच इज कॉल्ड फिल्टरिंग. बट इफ आई हैव अ सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज ऑल्सो solvent is also a liquid, तो उसे सेपरेट करने के लिए the technique or the process that we use is distillation, right? Now see, there are two main types of distillations. Okay, ये देखो, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल एंड सिंपल डिस्टिलेशन. बहुत इजी सी चीज है. अगर मैं डिस्टिलेशन की बात करूं, फ्रैक्शनल एंड सिंपल, देखो अब अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है जिसके वो अलग अलग तरह की चीजें हैं,
That means if these two components are different, they will have different properties also. Their features will also be, right? बोलो. Yes. हाँ मैम. हाँ, ठीक है. प्रॉपर्टीज क्या मतलब है? By saying properties, I mean उनका boiling, उनका melting point. Okay, so when these two liquids that I'm considering have different kind of boiling points, and use these things for my own benefit. मैं इन चीजों को manipulate कर सकती हूँ और अपने फायदे के लिए इन चीजों को कर सकती हूँ, और मैं वही चीज करती हूँ. ठीक है. सो डिस्टिलेशन इज यूज जब दो जो कंपोनेंट्स हैं उस सॉल्यूशन के अंदर उनका बॉइलिंग डिफरेंट है. समझ रहे हो बात को? अगर एक सॉल्यूशन में अलग चीजें हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकती हूँ. ठीक है, ये चीज समझे सब? ओके, सो सिंपल डिस्टिलेशन इज डन जब दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिग्री सेल्सियस है. ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल, Excuse me, ma'am. yeah, voice lagging. Yes, ma'am. Can you please repeat? No Okay, ma'am. okay, yeah. No, okay, चलो, no problem. See, if I have a solution, ठीक है, जिसके अंदर दो लिक्विड, one is A and one is B. बॉइलिंग पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल 65 डिग्री सेल्सियस एंड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 32 डिग्री सेल्सियस. सो कैन आई से कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स की 20 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है? हाँ मैम. मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं एक बार रिपीट कर सकते हो? बात नहीं, एक एक करके एक. ठीक है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है. इस केस में आई विल यूज सिंपल डिस्टिलेशन. ओके, पहले एक बार लिख, उसके बाद फिर से समझाती हूँ. इनमें 25 डिग्री का अभी 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 लिखवा रही हूँ, पहले लिख लो, बाद फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, डोंट वरी. ओके, सो सिंपल डिस्टिलेशन इज द टेक्निक विल यूज जब मेरे सॉल्यूशन के अंदर दोनों लिक्विड्स का 25 डिग्री से ज्यादा है, मतलब कि उनके बीच डिफरेंस, इफ वन will boil at 65 degree Celsius, one should boil at about इससे 25 कम. ठीक है, इससे 25 कम हो गया हमारा 40, है ना, मतलब समवेयर अराउंड 40 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट, राइट. बट अगर इनके बीच का डिफरेंस 25 डिग्री से कम है, सो इफ आई सिचुएशन लाइक दिस, इसका 65 है और लेट्स से इसका 50 है, उस केस में आई विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि the difference between the boiling points of these two liquids is less than 25. So here I will use fractional distillation, right? Yes ma'am. Okay, everyone. Yes. Yes, ma'am. Okay, so
Now tell me, why do I have fractional distillation for crude oil and not simple distillation? क्योंकि बेबी उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके पानी इवेपोरेट करने के लिए वो लेस देन 25 होगा. बोलो. सिंपल सा आंसर है, थोड़ा सा सोचो. मैम Think about, one second, Pavni. Think about the components of the crude oil. Think about what is fractional distillation. अपने आप पता लगेगा आंसर. Yes, Pavni. ओ मैम हाँ बताओ. Something. अनिकेत, कुश. मैम मैं सोच रहा हूँ. तो जल्दी जल्दी. सहर्ष, अभिक, आर्य. No. मैम हाँ मैम जैसे कि आप बोलो. लिसनिंग. जब मैम क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन होता है उसमें मैम पायरोलिसिस एक प्रोसेस होता है. तो मैम उसमें काफ़ी मतलब हीट आती है. तो मैम उससे पहले से जो कंपोनेंट्स वो हीट थी होगी वो उड़ गए होंगे. इसलिए मैम थोड़ी सी अगर थोड़ा कोई भी बाई चांस और कोई वाटर या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ बची है जो उन्हें रिमूव करनी है इसलिए वो फ्रैक्शनल करते होंगे क्योंकि उसमें मोस्ट ज़्यादा लिक्विड सब्सटेंस निकल गया होगा मैम थ्रू पायरोलिसिस. नहीं, ये आंसर नहीं. सुनो. See, what is crude oil? It is basically nothing but, I can say a mixture or a combination of various types of hydrocarbons. ठीक है, अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन है उसमें. So हाइड्रोकार्बन, there is a particular हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन है. हो सकता है एक और ऐसा जिसमें 3 कार्बन है. तो ऐसे करते करते कार्बन की चेन्स बने उसमें, राइट? When all of these are just hydrocarbons, बीच में ज्यादा बॉइलिंग डिफरेंस होगा नहीं. Right? The point of all these hydrocarbons that are present inside the crude oil have, a significant difference in the boiling points between them. Right? So that is why, since these hydrocarbon fuels do not have much of a difference in the boiling points, इसीलिए हम fractional distillation use कर रहे हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो. और यही चीज क्रूड ऑयल मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है या जो कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट है वो एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट सम मॉलिक्यूल और सम कंपाउंड हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन्स, सम हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन्स. ऑलराइट, ये चीज क्लियर है सबको? Okay. So see, this is a step of a fractional distillation, equipment का पूरा fractional distillation का setup है. Okay. इसके अंदर क्या होता है कि ये होता है हमारा distillation flask. Inside this, I will put the liquid that I need to purify. Okay. जो भी मुझे मटेरियल सेपरेट करना है, जो भी सोल्यूशन मेरे पास है जिसमें से मुझे अलग अलग कंपोनेंट्स निकालने हैं वो मैं इसमें डालूंगी. ठीक है, इसे हम रख देते हैं एक बर्नर के ऊपर. यहाँ पे ऐसे स्टैंड लगाते हैं, ऊपर वायर गॉज रखते हैं और ऊपर फ्लास्क रख देते हैं. राइट? वायर गॉजेस ऐसे करके एक मैश होता है, जाल बना होता है. ठीक है, आगे साइंस लोगे अगर और बड़ी क्लासेस में जाओगे कॉलेज में तो ये एक्सपेरिमेंट्स करोगे.
राइट। इसके नीचे ऐसे करके ट्राइपॉड स्टैंड रखते हैं इस तरह का, ऐसे, ठीक है, फ्लेम के ऊपर। देन दिस कॉलम इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ऊपर थर्मोमीटर क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे साथ साथ टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, ठीक है ना। मुझे पता लगा बिकॉज आई नो कि पेट्रोल के उस पे टेम्परेचर पे वो होता है, तो जैसे ही वो टेम्परेचर अटेन होगा आई नो दैट यस अब पेट्रोल सेपरेट होना शुरू होगा। ऐसे ही पैराफिन वैक्स का भी मुझे टेम्परेचर पता है। That is why the thermometer has to be placed over there so that I can regulate and keep an eye on the temperature. ठीक है। इसमें ग्लास के बीड्स डाल दिए जाते हैं, राइट। ग्लास बीड्स आर put inside this so that they form a barrier. ठीक है, एक तरह से बैरिकेडिंग करते हैं वो बीच बीच में, ताकि हर मॉलिक्यूल से टच होते 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 ये जो सेपरेट हुआ है, राइट। फिर यहाँ पे जब ये आता है, यहाँ से वेपर फॉर्म में आएगा, बॉयल होके वेपर बन जाता है ना, तो यहाँ ऊपर बन जाते हैं वेपर्स, ओके। एंड दीज वेपर्स ट्रैवल हियर। नाउ कैन यू सी दिस ट्यूब यहाँ बीच में? दिस इज द मेजर ट्यूब। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, दिस वन, ये रास्ता है, वहां से वो वेपर पास होगा। ये जो आसपास की सारी जगह है ना, दिस एरिया, यहाँ पे सारा पानी होता है। देख रहे हो आउटलेट। हियर वी पुट इन द वाटर। व्हाई एम आई पुट वाटर यहाँ पे? हम ताकि जो वेपर है वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड फॉर्म। क्योंकि जब यहाँ वाटर होगा तो ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे ठंडक हो जाएगी, और ठंडक मिलते ही क्या होता है, द वाटर वेपर विल कंडेंस, वो कंडेंस वाटर फॉर्म में आ जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फेज, ओके। एज इट कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड, मेरे पास यहाँ फ्लास्क के अंदर वो लिक्विड इकट्ठा होता जाएगा। इट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, राइट। इसीलिए देखो इसका नाम क्या है, लीबिक कंडेंसर। मेरा पेन दिख ही नहीं, 1 सेकेंड, राइट। दिस इज द लीबिक कंडेंसर, राइट। यहाँ से वाटर अंदर जाता है, यहाँ से वाटर अगर एक्सेस है तो बाहर आउटलेट, दिस इज द इनलेट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आई सबको? मैम एक बार आप बता सकते हो कि मैम ये बीड्स क्यों डाले जाते हैं? ये बीड्स हम डालते हैं to provide you know certain barrier, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिकॉज देखो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर किसी एक का मान लो 65 डिग्री है तो हो सकता है दूसरे का 67 डिग्री हो, ठीक है। बहुत क्लोज इनके वो हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। सो इफ फॉर एग्जांपल पेट्रोल के साथ साथ कोई और मॉलिक्यूल भी साथ ही साथ वेपराइज हो रहा है, तो वो इन बीच को टच करते ही वापस नीचे चला जाएगा ठंडा होते ही, ठीक है। बीच को टच होगा, नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ धक्का लगेगा। सिर्फ उस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल को बाहर निकलना चाहिए, वही निकले, इसीलिए हम इन बीड्स को डाल रहे हैं, right? So these beads are like barriers for any additional or non or undesired molecule to separate out. ठीक है मैम वैसे मॉलिक्यूल्स बाहर क्यों नहीं निकलेंगे मैम? क्योंकि वहां से उन्होंने बंद कर रखा है मैम, थर्मोमीटर के साइड में जो स्पेस है वहां से नहीं। हाँ, वो जगह बंद होती है, ठीक है। दिस एरिया इज क्लोज्ड विद हेल्प ऑफ अ कॉक, और यहाँ बीच में जहाँ से थर्मोमीटर घुसाते हैं, थर्मोमीटर को घुसाने के बाद यहाँ पूरी वैक्स लगा देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं, नहीं तो ये वेपराइज होके यहीं से बाहर निकल जाएगा हवा के अंदर, ओके। बट वांट टू अक्यूमुलेट इट इन द लिक्विड फॉर्म, राइट। यू नो ये तो जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तो इसमें इन्होंने बीड्स डाले। फुल डिस्टिलेशन के अंदर हम इसमें प्यूमिक स्टोन डालते हैं, ठीक है। प्यूमिक स्टोन क्यों डालते हैं? हैव यू सीन प्यूमिक स्टोन? सबने देखा है ना? नो मैम, हाँ हम देखा है। हाँ, वो ऐसे ना स्पॉन्ज जैसा लगता है, बस ये है कि वो पत्थर है। इट्स जस्ट मैम पोर्स होते हैं उसमें। इट इज हाईली पोरस, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं। वो प्यूमिक स्टोन यूज होता है ताकि अगर ये लिक्विड बॉयल हो, तो आपने देखा ना बॉयल होते ही लिक्विड कैसे उछलने लगता है, ऐसे बबल्स बनने लगते हैं, तो वो बबल जो बन रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्टोन डाला जाता है, क्योंकि समटाइम्स व्हाट कैन हैपन इज कि वो फट सकती है, पतली होती है ये, ठीक है। प्यूमिक स्टोन नहीं डालेंगे तो फटेगी, एंड दिस हैड हैपेंड विद माय फ्रेंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। सो
शी फॉरगॉट टू पुट इन प्यूमिक स्टोन। और ना इसी चीज के मार्क्स लगते हैं कॉलेजेस और स्कूल्स में प्रैक्टिकल के टाइम पे। प्यूमिक स्टोन डाला है, नहीं डाला, 5 आउट ऑफ 10 डिडक्टेड, पूरे 0.5% मार्क्स कट हो जाते हैं वहीं पे सीधा। एंड व्हाट हैपेंड टू हर वाज वो प्यूमिक स्टोन भूल गई, ठीक है, और पास से ऐसे ना बिल्कुल यहाँ पे फेस लाके नहीं आ रहा, देखो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो जो ट्यूब गए एकदम से, और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वो था H2S, एंड उसके इतने सारे छिट्टे उस पे गए, एंड देन शी वाज रश्ड टू सफदरजंग, क्योंकि वहां पे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो वहां लेके गए फटाफट, इतने सिवियर बर्न्स हो गए थे उसके फेस पे। सो दीज एक्सपेरिमेंट बी डन विद अ लॉट ऑफ केयर, राइट। अवनी सही, अच्छा देखो, हाँ बोलो पावनी। ये पूछना मैम, ये मैम डिस्टिलेशन इसलिए होता है कि मैम जैसे कि आपने बताया था वो इवेपोरेट करना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म को, मतलब जो यूजफुल वाला नहीं है, तो मैम लेकिन यहाँ तो फिर से मैम वो ऊपर जाते ही वो ठंडा हो जाएगा। तो मैम मेरे को समझ नहीं आया मैम डिस्टिलेशन होती क्यों है, वो एक ही बात हो रही है। क्या क्या फिर से बोलो मैम, मेरे को ये समझ नहीं आया मैम डिस्टिलेशन हो क्यों रही है। मैम जो पेट्रोल निकल रहा है मैम वो वेपर में जा रहा है, वही वेपर फिर से वाटर में जाएगा, तो मैम डिफरेंस क्या हुआ, मतलब क्या निकला, क्या हुआ? वाटर नहीं, वाटर में थोड़ी जा रहा है वो, देखो वाटर में कहाँ जा रहा है, सी वाटर सिर्फ यहीं तक है, वाटर इज ओनली हियर, यहाँ पे वो पेट्रोल लिक्विफाई हो रहा है, और यहाँ से जब निकलेगा तो सिर्फ पेट्रोल मिलेगा मुझे, इसमें वाटर नहीं आएगा, ठीक है। जो वाटर है वो सिर्फ इस जगह पे, देखो ना, यू कैन सी ये जगह पूरी इनक्लोज्ड है, पूरी बंद है, वाटर सिर्फ इसी के अंदर है। Okay, so what I am doing is I am condensing the water of the petrol in this tube, right? जैसे अगर आप वाटर साइकिल का एग्जांपल लो, सी था, उसमें से इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, वाटर वेपर ऊपर एनवायरनमेंट में चला गया, ऊपर जाके टेम्परेचर कम है, तो ठंडक की वजह से वाटर वेपर कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे अब देखो, अपनी आप भी समझो, डिस्टिलेशन फ्लास्क में मैंने लिक्विड लिया है, ठीक है, क्रूड एग्जांपल ये लिया, ठीक है, आई रीच द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग व्हिच द पेट्रोल विल नाउ स्टार्ट इवेपोरेटिंग, ठीक है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट वो इवेपोरेट होगा, उसके वेपर्स, कैन यू सी व्हाइट कलर के यहाँ वेपर्स यहाँ जाएंगे, ठीक है, इन बीड्स में से निकलेंगे, ओके, बीड्स मेक श्योर कि अगर किसी और कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल के आसपास है, उससे 1 डिग्री कम है या 1 डिग्री ज्यादा है, तो वो उसके अंदर ही रहे, बीच के बैरियर मिलता है, ठीक है, यहाँ से निकला और वेपर है, अभी सारा यहाँ वेपर है, वेपर वेपर, ठीक है, यहाँ पे भी वेपर। व्हेन इट रीचेस हियर, इस ट्यूब में से पानी एंटर होता है, और इस ट्यूब में आसपास पूरा पानी घूमता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, द वाटर इज सर्क्यूलेटिंग इन दिस ट्यूब, और ये अंदर जो ट्यूब है ये अलग है, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये ट्यूब है और इसके आसपास ये केस है जिसके अंदर पानी है, टू मेक दिस ट्यूब कोल्ड फ्रॉम द आउटसाइड। सो ड्यू टू द कूलनेस और द लो टेम्परेचर फ्रॉम द वाटर, यहाँ पे आके जो पेट्रोल वेपर फॉर्म में था अब वो लिक्विड बन गया, तो वो इस फ्लास्क में हमारे पास इकट्ठा। ओके मैम, मैम को आप समझ आई? अवनी आपको भी समझ? यस मैम। तो एक काम करो, जल्दी से ये जो पूरा पैरेटस है ये ड्रॉ कर लो। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो। Ma'am, I was asking that is bitumen and lubricating oil is also used as paraffin wax. What is lubricating oil used as? Ma'am, paraffin wax. No, paraffin and lubricating oil is different, okay? अभी हम पढ़ेंगे। And ma'am, bitumen is also different. Yes, bitumen. Okay, bitumen हमें कौन से मिलता है? मैम जी मेरे को एक
चीज पूछनी है कि मैम जो मैम आपने नोट्स मैम जो वो वाले हैं मैम बुक वाले मैम उसमें एक पिक्चर बनाई हुई है जो बहुत डिफरेंट है मैम, वो मैं आपको एक बार दिखाऊं मैम? मेरे को समझ नहीं आ रही इसमें कौन सा प्रोसेस है। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। वो जो आप नोट्स की बात कर रहे हो ना, उसमें जो पिक्चर है वो आपकी सिर्फ इस चीज की पिक्चर है, ये इसकी पिक्चर है वो सिर्फ दिस थिंग, और उसके अंदर इस तरह से नहीं बनाया हुआ, उसमें इस तरह से बनाया हुआ है। यही चीज कह रहे हो ना? मैम व्हाट? मैं कह रही हूँ कि द नोट्स दैट यू टॉकिंग अबाउट, उसमें आप इस वाली पिक्चर की बात करोगे कि ये बनाया हुआ है उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, राइट? यस मैम, ऐसे बनाया है। वो इस चीज की पिक्चर बनाई हुई है सिर्फ, ओनली दिस थिंग हैज बीन शोन। ये वाला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाया है सिर्फ उसमें पास से। उसके लिए भी आई हैव अ वीडियो फॉर यू गाइस, डोंट वरी। जल्दी जल्दी से ड्रॉ करो एंड देन लेट मी नो क्या लिया है। मैम जैसे कि मैम जहाँ पे आपने लिखा हुआ है मैम बीट्स के साइड में जो फर्स्ट वाला बनाया हुआ है मैम उन्होंने वेसल, मैम उसमें जहाँ पे आपने वी लिखा हुआ है मैम वहाँ पे तो ढक्कन इतना बड़ा है मैम उसका, तो मैम उससे एयर तो बाहर नहीं निकलेगी। नहीं नहीं, ये पूरा एयर टाइट होता है, ठीक है? ऑल ऑफ दिस ओवर हियर इज, कहीं से भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती एयर या फिर कोई भी वेपर। मैम वो फ्लास्क के ऊपर वो कॉक जैसी कोई चीज रखते हैं ना? हाँ, वो फॉग वेपर्स की वो दिखाया हुआ है आपको, वेपर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ फॉग सा दिखाया हुआ है। मैं सर फ्लास्क के ऊपर कॉक रखा हुआ है। व्हाट वाज द क्वेश्चन शाश्वत? मिस जो फ्लास्क है उसके ऊपर एक कॉर्क रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है समझ नहीं। कॉर्क, हाँ हाँ, यस यस, दिस इज अ कॉर्क, और इसके बीच में ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉर्क है हम वैक्स की हेल्प से ऐसे सेट कर देते हैं, ठीक है? ये जो कॉर्क होता है इसमें होल होता है अभी, राइट? ओके मिस। मैम
मैम वो क्या है मैम, वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट? मैम यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है? हाँ देखो, यहाँ से वाटर अंदर जाता है, ठीक है, यहाँ से पाइप कनेक्ट किया जाता है फॉर वाटर, एंड यहाँ से वाटर आउटलेट के लिए बनाया जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पेपर आ रहा है दैट इज वेरी वेरी हॉट, इसके साथ में कांटेक्ट में आके यहाँ का पानी रहेगा, ठीक है ना, होता ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं बंद कर दूं और सिर्फ यही पानी के ऊपर डिपेंडेंट, यही पानी जो है कंडेंसेशन का, सो दैट हॉट वाटर विल बी ऑफ नो यूज टू दिस। ओके, that is why I need a constant supply of cold water. तो यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता रहेगा और यहाँ से नया फ्रेश वाटर जो है which is colder keep on entering. ओके मैम, यस मैम। तो मैम ऐसे सारा पानी बाहर नहीं निकल जाएगा मैम वाटर इनलेट से? Yes Pavni, what are you saying? ऐसे सारा पानी बाहर नहीं निकल जाएगा बार बार? क्या बाहर निकल? मैम पानी, मैम जैसे कि वाटर इनलेट से आपने बोला था कि ताकि हाँ तो मैम वो बाहर नहीं निकल जाएगा ऐसे सारा? मैम वो खुला रहता है, उसे बंद भी कर सकते हैं? नहीं, वो उसके साथ में ट्यूब्स अटैच्ड होती हैं, यहाँ पे भी एक ट्यूब होती है वाटर के साथ में जा रही है जो एक बीकर की तरफ, और यहाँ पे होती है, ठीक है। यस मैम। Ma'am, drawn. Drawn everybody, आगे चले। Yes, ma'am. तो मैम 1 मिनट। मैम इसमें तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर डालते होंगे ना? हाँ, लेबोरेटरी थर्मोमीटर डालते हैं। मैम सबसे ऐसा कौन सा थर्मोमीटर है जो सबसे ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है? ये लेबोरेटरी वाले ही होते हैं। मिस, ये वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट क्या है? अभी बताया तो था क्या है वाटर इनलेट और आउटलेट। चलो कोई और बच्चा बताओ। मैम मैं तो हाँ हाँ बताओ। मैम इसमें वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट में जो पानी जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकलता है, और मैम जैसे कि हमें कोई फ्रेश वाटर डालना है तो हम उससे डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वाटर इनलेट से फ्रेश सप्लाई होती है वाटर की, तो कोल्ड वाटर, और वाटर आउटलेट से जो पानी गर्म होता जा रहा है स्टीम में आके वो बाहर निकलता जाता है। मिस, लेकिन वाटर इनलेट कैसे किसी चीज से कनेक्शन नहीं है? क्या क्या वाटर इनलेट? बोलो शाश्वत। मैम डाउट तो मेरे को ये भी है कि मैम वाटर इनलेट से सारा पानी ऐसे तो बाहर निकल जाएगा मैम, मेरे को वाटर इनलेट से पानी अंदर आता कैसे है? अंदर आता कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक अपैरेटस लगाया जाता है जिससे पानी जो है वो अंदर आ जाए, ठीक है। ओके मिस। मैम वाटर इनलेट से सारा पानी, मैम मेरे को ये अभी भी नहीं आया समझे कि मैम सारा पानी बाहर चले जाएगा ऐसे तो फिर? नहीं बाहर नहीं जाता, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन प्रेशर दैट इट, ओके। देखो जैसे मोटर्स हैं, मोटर्स किस लिए यूज करनी को, टैंकी तक चढ़ाने के लिए, है ना, ऊपर वाटर टैंक तक पानी जाता है, नीचे तो नहीं आता ना कभी, उसकी मोटर पानी खींच नहीं उल्टा, राइट? थिंग हैपेंस विद द वाटर इनलेट आल्सो, इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट देयर एंड गिविंग इन द वाटर, इट नेवर टेक्स इट आउट। ओके मैम। चलो आगे चले। Yes, right. So see different types of fractionating columns.
एक ये ऐसे वाला होता है बी और ये एक इस तरह का होता है, राइट? Okay, Abni is asking what is the use of those B fractional column. Oh God, is my voice lagging in between नो मैम। or breaking? अभी उस टाइम बताया था ना. चलो देखो, ये जो beads होते हैं, these are responsible for, you can say preventing the condensation operation of a compound which has a similar or close to boiling point of the material that we are separating. मतलब अगर पेट्रोल के साथ साथ जिसका बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल के जितना ही है या उसके आस है, वो भी उसके साथ वेपर बन के बाहर आ रहे, तो इन बीड्स की वजह से वो अंदर ही रहे, ठीक है? वो बीड्स उससे बाहर नहीं आने देते. पर बीड्स कैसे मैम बता सकती हैं कि मैम ये पेट्रोल है ये नहीं है? हम अगर उसके पास का ही है तो उन्हें कैसे पता है कि अगर 60 डिग्री या 61 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वक्त वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, राइट? लिक्विड जो 62 के आसपास या 61 ही मान लो कि 1.5 समथिंग है, तो वो अभी तैयारी कर रहा है बिल्कुल बन के. तो ये जो बीड्स हैं, these are comparatively cold, right? इनका टेम्परेचर तो नॉर्मल है, तो इससे टच होते ही ये बीड्स जल्दी कंडेंस होके नीचे गिर जाएंगे. Whereas जो पेट्रोलियम ऐसा नहीं कर पाएगा, ओके वो बीच बीच में से निकल जाएगा क्योंकि उसे बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर मिला हुआ है अभी बॉयल होके बाहर निकलने के लिए, राइट? Whereas इनका अभी टेम्परेचर उतना अटेन हुआ नहीं है, so they can easily condense over there, fall back into the floating column or into the distillation flask. हाँ बोलो. यस मैम. तो मैम अगर मानो मैम पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट भी 60 है और वो अनवांटेड पार्टिकल भी है, तो मैम तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ना? क्या क्या? अगर पेट्रोल वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस और मैम जो अनवांटेड पार्टिकल है जैसे आपने बताया था उसका 60 डिग्री सेल्सियस है, तो मैम फिर वो नहीं बता पाएगा, मतलब आइडेंटिफाई कर पाएगा. Pavni, you will have to repeat the question. मैंने सुना नहीं, फिर से बताओ. मैम आई एम ऑडिबल? Yes, बोलो. मैम मैं पूछ रही थी कि मैम अगर कोई पेट्रोल वाले मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर बॉइलिंग का पॉइंट है मैम वो भी 60 डिग्री सेल्सियस है और मैम अनवांटेड पार्टिकल का भी 60 डिग्री सेल्सियस है, तो मैम फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना बीट्स? देखो वैसे तो ऐसे मॉलिक्यूल होते नहीं है जिनका बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है? और अगर वो सिमिलर हो तो फिर वो पेट्रोल के साथ साथ ही कंडेंस हो जाएंगे. इस बार फिर आगे जब हम पेट्रोल को प्रोसेस करते हैं या फिर उसमें हम नॉकिंग एजेंट्स डालते हैं तो उनका फिर तब ध्यान रखा जाता है कि वो चीज भी अपने सेपरेट हुई होगी, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है, राइट? यस मैम. So see, these are the large scale refineries जहाँ पे क्रूड ऑयल को सेपरेट किया जाता है. अब एक बार ये डायग्राम देखो, फिर मैं वीडियो दिखाती हूँ. राइट नाउ लुक एट दिस वन. देयर आर डिफरेंट आउटलेट्स ओवर हियर. अलग अलग आउटलेट्स देख रहे हो. सबसे पहले जो है रेजिड्यू है, तो वो रेजिड्यू यहाँ से निकलेगा. जितना ऊपर आएगा इसका मतलब है उतना ही ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका, राइट? इसीलिए वो जल्दी जल्दी से लो बॉइलिंग पॉइंट है. ओके, यानी कि वो सबसे पहले जो है वेपराइज होना शुरू हुआ और ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट? ये चीज तो कि अगर रेस लग रही है, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं A B C D E, ओके, एंड E को पहले अलाउ करते हैं हम जाने को. हम कहते हैं E चलो तुम जाओ, एंड आई टेक 10 मिनट्स टाइम. तो पहले मैंने 1 मिनट बाद में D को भेजूंगी, तो 10 मिनट बाद D कहीं यहाँ पहुंचेगा. 2 मिनट बाद C को भेजूंगी, तो 10 मिनट बाद वो यहाँ पहुंचा हो. ऐसे करते करते अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद में हम सबको भेज रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है ना, सब पीछे पीछे ही रहेंगे. ऐसा ही होगा ना. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पेट्रोलियम जो है वैसे तो सबसे कम रिफाइन का है, ठीक है? 20 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होने लगती है और सबसे पहले वो भागी सबसे ऊपर, राइट? तो वहां से उसे पकड़ लेंगे. पेट्रोलियम 70 डिग्री है तो वो यहाँ तक पहुंचेगा, वहां से उसे निकाल लेंगे. फिर 120 डिग्री यहाँ से ये केरोसिन यहाँ से,
डीजल नीचे से, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और ज्यादा है 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से लास्ट 350 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूल ऑयल बॉईल होता है, यानी वो नीचे रह जाएगा, सबसे लास्ट में बॉईल हो रहा है, राइट? तो उसको सबसे नीचे से निकालते हैं कॉलम से, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ इट आउट इज द रेजिड्यू। उस रेजिड्यू को भी अब हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं यूज करने की, because it's a precious thing, over a lot of years it has been formed, so we try to inculcate the residue also in our industries or in other processes, right? Now let's see that video, एक बार देख से और समझ आएगा। हमें चैप्टर और I कितने think I क्लास will में have to खत्म है? reach देखो वैसे मुझे लग रहा था कि शायद आज हम काफी कर लेंगे, बट आज मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा, तो लेट्स ट्राई एंड रैप इट अप बाय द नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके, सो आई विल रीशेयर माइन, क्योंकि उसमें आपको साउंड भी आएगी। In this video, you will learn how fractional distillation separates crude oil into useful fractions. Crude oil is the term used to describe unprocessed oil. That is oil that has been taken directly out of the ground, either on land or under the sea. It is an exceptionally valuable resource. It provides us with a great number of hydrocarbons, some of which are useful as fuels, and others are used in the manufacture of many different chemicals and even plastics. However, in the raw form as crude oil, it can be a viscous, dark-coloured tar-like consistency, and the different fractions of hydrocarbons must be separated by fractional distillation for them to be useful. Before we understand how fractional distillation works, we should be clear that crude oil is a mixture of hydrocarbons with different chain lengths, some being short molecules and some being very long. Intermolecular forces act between molecules, and the longer the molecule, the greater the intermolecular force. As you can see here, the small molecules have weaker intermolecular forces, and so will require less energy to break them apart and turn them into a gas. They have a lower boiling point. The longer molecules have greater intermolecular forces. More energy is required, a higher temperature will be needed to evaporate these molecules. They have a higher boiling point. Now we understand how chain length is related to the boiling point of a molecule. Let us look at how this method. As you can see, crude oil is heated up to a high temperature outside of the fractionating column. The hot crude oil, now mostly in vapour form, is pumped into the column. The column has a heat gradient and is very hot at the bottom, going cooler as we move up to the top. Even at the very bottom of the column, where the temperature is still high, some long chain molecules with high boiling points begin to condense back into a liquid. These are collected at the bottom of the column. The rest of the molecules start to rise up the column, making their way through bubble caps in each tray. The bubble caps slow down the rate of the rising vapour, and eventually the vapours get too cool, condense, and are collected as liquids in the trays. Small molecules have low boiling points, and so condense much higher in the column, where the temperature is cooler still. As you can see, hydrocarbons with similar boiling points are collected in the same tray, and this is why they are known as fractions. They are mixtures of hydrocarbons with similar boiling points. Each fraction has some important uses. Some examples of fractions are petrol, useful as a fuel for cars; naphtha, used in the manufacture of chemicals;
kerosene as aircraft fuel, diesel oil used as fuels for vans, cars and lorries, and bitumen, a mixture of large chain hydrocarbons used to lay roads. Now, at the end of this video, you should understand that crude oil is a mixture of important hydrocarbons, and that fractional distillation is the method used to separate crude oil into useful fractions with similar boiling point. You should understand that small chain molecules are collected at the top of the column since they have lower boiling points, and larger chain molecules are collected further down the column as these have higher boiling points. Right? So did you people understand? Yes. Yes, ma'am. Okay. What is molecular? ओके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में अटैच्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है ठीक है दैट्स अ बॉन्ड सो दैट इज मॉलिक्यूलर फोर्स राइट अपनी सो डू यू नो नाउ व्हाट यू मीन यस नी बिट्यूमेन पता लग गया वीडियो से Yes, ma'am. ओके एंड बिट्यूमेन को ही हम एस्फाल्ट भी बोलते हैं ओके सो दीस आर द टू नेम्स फॉर अ सिंगल थिंग राइट ओके वन सेकंड हम जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना हाँ ज्यादा होता है ठीक है और जो छोटे होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है राइट यस मैम okay so look over here also it has shown smaller molecules have a smaller boiling point जो larger molecules है they have a larger boiling point तो उस चीज को लिख लेते हैं ठीक है yes Shashwat Miss, how is the residue? what Miss, how is the residue used? how is the residue used we will come to that don't worry ठीक है ये चीज आप नोट डाउन कर लो Ma'am, noted. all right okay now see based on the fractional distillation जो हमें components मिलते हैं so whatever is extracted from petrol or the crude oil is called as petrochemical ठीक है तो आपने ये वर्ड सुना भी होगा petrochemical industry right you must have heard of this term so what are petrochemicals the different substances या फिर the various substances obtained from the petroleum
मैम जब सब्सटेंसेस हैं तो उनको केमिकल बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें भी पेट्रोकेमिकल्स को हम चार अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गए आपके लाइट डिस्टिलेट्स। डिस्टिलेट का मतलब है जो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड्स हैं, यानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। So what are the light distillates? The clear such as आपका natural gas हो गई, गैस हो गया, naphtha हो गया, ठीक है, gasoline and naphtha. And look at the percentage. 46% of crude oil has light distillates in it. यानी 46% के आसपास तो आपका गैसोलीन ही है उसके अंदर, नेचुरल गैस वगैरह। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिडिल डिस्टिलेट, यानी जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ठीक ठीक सा है, मीडियम है। Okay, and what is the percentage? It is 31%. And the examples of these products are kerosene and diesel. And आपने देखा ही है, सिर्फ ब्राउन कलर का होता है, देखा है ना, यहाँ ई मिस हो गया बीच में। Have you seen diesel? Anybody? ब्राउन कलर का होता है, right? So that products. Yes. थर्ड हमारा आ गया heavy distillates. Okay, heavier ones are those which have a higher boiling point. And इसका example bitumen. Okay, and the last one is the residual, यानी कि जो भी हमारा बच गया। तो अभी जब मैं आपको उसके एग्जाम्पल बताऊंगी 3% होता है, ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगी, अपने आप आपको पता लग जाएगा। जैसे आई थिंक शाश्वत वाज आस्किंग कि मैम वो हम कहाँ यूज करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स, ओके, ये चीज नोट डाउन कर लो सब, जल्दी जल्दी। Noted. मैम हेवी डिस्टिलेट बिट्यूमेन है। हाँ जी, मैम हेवी डिस्टिलेट्स में सिर्फ बिट्यूमेन है। हाँ जी, मेजरली उसमें बिट्यूमेन होता है, ठीक है। और मैम यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स मतलब रेजिडम। I am not really able to comprehend what you are saying. मैम आई एम सेइंग दैट मैम यहाँ पे जो मैम रेसिडुअल ऑयल्स के बाद अदर प्रोडक्ट्स लिखे हैं, मैम ये रेसिडम की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, रेजिड्यूअल का मतलब है जो मतलब कि जो इतना ज्यादा डिस्टिलेशन करने के बाद भी आगे रेट नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट इज लाइक द लेफ्ट ओवर मटेरियल। मैम जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो हेवी डिस्टिलेट है ना। हाँ हाँ, हेवी डिस्टिलेट है 20%। देखो ना, परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, so that is obviously the heavy distillates. Okay, now this was all of the petrochemicals that are obtained from the petroleum or the crude oil when we do distillation of it. ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनके यूजेस क्या है। अब जैसे सबसे पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे, विच इज द एलपीजी। एलपीजी आप यूज कर घरों में फॉर कुकिंग पर्पसेस। तो जो ये सिलेंडर्स है या फिर जो गैस लाइंस है, पाइपलाइंस है आपके घरों में आ रही हैं, दीज आर ऑल एक्चुअली एलपीजी टू योर हाउसेस एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पसेस, राइट। देन you know, also at times used as a heating thing, मतलब अप्लायंसेस वगैरह को हीट करने के लिए भी एलपीजी को यूज किया जाता है, राइट।
Yes, miss. Right? Obtained as a byproduct during fractional distillation of petroleum oil. Okay, byproduct क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि मेजर जो हमारा कंसर्न रहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते समय वो होता है कि हमें पेट्रोल मिले, जितना ज्यादा पेट्रोल मिले उतना ही अच्छा है। तो उसके अलावा जितनी भी और चीजें बनती हैं हम उन्हें बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू नोट डाउन कि इट कंसिस्ट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। वैसे जान लो प्रोपेन जो होता है इट हैज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड ब्यूटेन हैज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट? और इनके आसपास सारे H लगे होते हैं, हाइड्रोजन्स। क्लियर है? इट कैन बी रेडिली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। हम इसे प्रेशर के अंडर लिक्विफाई कर देते हैं सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ओके, so I think you should note down 1 second from here till here and then from here till here, और फिर uses लिखोगे। हीटिंग अप्लायंसेस, ठीक है? हाँ बोलो पावनी। मैम जैसे कि इसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं मैम ब्यूटेन में, और मैम इथेन में कितने होते हैं और उसका कैसे होता है? 2 होते हैं। मैम व्हाट? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस आई एम सेइंग कि इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, ठीक है? यस मैम। Ma'am, you are not audible. Yes, ma'am. What are you guys saying? I'm not Ma'am, audible. आपकी आवाज नहीं आई अच्छा, थी। what do you guys want? नहीं, see all right now from you people is कि आप लोग ये चीज नोट डाउन करो, ठीक है? क्यों फिर इसके बाद हम आज का सेशन खत्म करते हैं। You guys sound quite a bit tired, है ना? तो हम सेशन फिर ये खत्म करते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Shashwat, do you have a doubt? No, miss. Okay. चलो, so if you have noted this down, लिखने को कहा है, you can leave the class then. Okay? Thank you, ma'am. Okay, good night everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Are the rest of you done? Should I stop sharing? Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Arshia.